Namaste. Today is 21st June, International Yoga Day, and the theme this year is Yoga with Family. To celebrate this day, we at FO School Panchvati have prepared a small program for you. And Amit sir, with a beautiful shloka, will start the program now. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Beautiful feeling that we get from reciting a shloka. Let's come back to yoga. I'm sure आप में से बहुत लोग डेली योगा प्रैक्टिस करते हैं, एंड अगर डेली भी नहीं करते हैं तो वीकली 3 to 4 days तो करते ही होंगे. योगा नहीं तो वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बट कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस ज़रूर करते होंगे. बट हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक शुरू नहीं किया है. सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सब के लिए है. थोड़ा गहरा से जानते हैं कि योगा एक्चुअली हमें किस तरह से बेनिफिट करता है. योग करने से सिर्फ हमारा बॉडी का मसल्स ये सही नहीं होता, सिर्फ हमारे बैक पेन या डायबिटीज़ या कोलेस्टेरल जो कि लाइफस्टाइल डिजीजेस है, सिर्फ वही सही नहीं होता. There are plenty of things that happen when we do yoga. Let's start with your 24 hours day. There's so much stress in today's world. During the times of pandemic, what has Corona given us? Not just the virus, but at the same time, whole lot of uncertainty, lot of fear, lot of feeling of not having that control over anything, and that caused stress. ऑफिस में स्ट्रेस, बच्चे घर में हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है, उसका एंजाइटी, एंड ऑल दीज थिंग्स दे जस्ट स्टे विद अस. वी जस्ट कीप इट एंड टेक इट अलोंग with us. Now, what happens when we continue with stress for a long, long time? It shows as headache, या तो upset tummy, dizziness, and a feeling of, low energy throughout the day. आप चिड़चिड़ा हो जाते हो, आपको किसी से बात करने का मन नहीं होता है, एंड धीरे धीरे अगर आप इसको कंटिन्यू होने देते हो तो ये एक बड़ा सा डिप्रेशन स्टेट में भी आ सकता है. बट इफ वी डू योगा ऑन अ रेगुलर बेसिस, say 30 minutes, you see the changes it brings in you. It works every single muscle of your body. Of course you feel fit, और हम खुद को जब fit फील करते हैं, so we feel super confident about ourselves. And at the same time, आपको अगर you are just feeling tired for the whole day, इतना सारा काम रहता है, उसके बाद you just don't feel like doing anything for yourself. If you do yoga even for 10 minutes, you will see you are kind of energized. आपको लगता है अच्छा ठीक है, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लेती हूँ. Now, ये तो एक तरह का बात हुआ, just the physical part, right? अब सोचो आप बहुत टेंस्ड हो और आप बहुत डरे हुए हो, तो उस टाइम क्या होता है, हमारी सांसें बहुत तेज़ चलती है. तो हमें नॉर्मली क्या कहा जाता है कि टेक अ डीप ब्रेथ, है ना? सो दैट मीन्स दैट डीप ब्रेथ हैज़ relaxing effect on us. आप खुद भी जहाँ भी रहते हो वहाँ अगर आपको अच्छा ऐसा जगह नहीं मिल रहा है कि आप जहाँ आराम से in the open you can do yoga, at least as you get up from the bed,
you do little bit of stretching. And sitting on your bed, give yourself 10 minutes to do deep breathing. And deep breathing doesn't mean you breathe from the chest. We breathe from the chest जब हम बहुत tensed होते हैं, जब बहुत stressed होते हैं. You do deep breathing from your abdomen. मैं बच्चों को ये बताती हूँ हमेशा कि आप जब डीप ब्रीदिंग जब इनहेल करते हैं और ब्रीद आपको एब्डोमेन तक पहुँचना चाहिए, उस टाइम आप सोचिए कि एज यू आर इनहेलिंग यू आर फ्लोटिंग अप लाइक अ बलून, और जैसे ही वो ब्रीद आपके अंदर से बाहर जा रहा है, आप ये सोचिए कि घर में जो पुराना टूथपेस्ट का ट्यूब रहता है और स्क्वीज करके उसको निकाला जाता है, ठीक उसी तरह खुद को महसूस कीजिए. So if you do it for 10 minutes, that deep breathing, you will see instantly there's a different you. You are calm. आपको ऐसा नहीं लगता oh God कितना सारा काम है, there's so much that I have to do. Oh, and you in fact you feel it's okay, I can handle everything. Alright? So, and also parents, you are your children's best role models. They look at you and they learn, right? So if you do yoga on a daily basis, they see that their parents are so disciplined and they bring that discipline in them. And you can teach them some difficult asanas. There's this bonding that, grows between you two. You can teach them that it's okay to fall. ठीक है, एक बार में आपसे नहीं हो पाया, दोबारा आप करो. And that helps them to grow as a better human being. So parents, I request all of you to make yoga a part of your daily life, and to do that, Priyanka ma'am will take us through a small energizing series of yogas. Good morning all of you. Today is International Yoga Day. We are going to celebrate International Yoga Day. The International Yoga Day has been celebrated annually on 21st June since 2015. So, हम सबों को योगा क्यों करते हैं? हम सब योगा इसलिए करते हैं कि स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, मेंटल पीस के लिए, हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, एंड हमें किसी तरह के तनाव और मानसिकता का सामना न करना. सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ आसन बताऊंगी, शेयर करूंगी, जो कि आपको प्रॉपर वे में करना है. सो फर्स्ट आपको क्या करना है, हम खड़े होकर करने वाले एक्सरसाइज के बारे में आपसे बताएंगे, और खड़े होकर एक्सरसाइज के बाद हम लेट के करने वाले एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, एंड उसके बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे. सो जितने भी स्टेप मैं बताऊं, बहुत ही ध्यान से आपको करना है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से उसको करना है, एंड प्रॉपर वे में. एक चीज का और खास ध्यान रखना है आप सभी को कि सबसे पहले जब भी आप योगा करते हो तो आपके चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए, आपके चेहरे पे हैप्पीनेस होना चाहिए. इस बात का खास ध्यान रखना है. एंड जब मैं कमांड दे रही हूँ एंड जब मैं कर रही हूँ, तो हो सकता है मैं ब्रीथिंग के लिए मेरी आवाज आप तक क्लियर ना पहुंचे. तो दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऊपर की ओर करने वाली एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हैंड्स अप कर रहे हैं तो आपको ब्रीथ इन करना है, एंड हैंड्स डाउन कर रहे हैं तो आपको ब्रीथ आउट करना है. ठीक है, जब हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं तो ब्रीथ इन करना है, एंड जब झुक रहे हैं तो ब्रीथ आउट करना है. इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखना है. एंड जब कभी भी आप आसन में रुके हुए हो, होल्ड किए हुए हो, फॉर एग्जाम्पल जब हम हाथ उठाकर थोड़ी देर अगर रुक रहे हैं तो उसमें हमारी ब्रीथ नॉर्मल होना चाहिए. ठीक है, इन तीनों चीजों का आपको खास ध्यान रखना है. ओके, सो डू प्रॉपर. आप सभी को आज मैं सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊंगी. सूर्य नमस्कार एक फुल पैकेज एक्सरसाइज है जिसको हम एक साथ 12 आसन में करते हैं. सूर्य नमस्कार हमारे बॉडी में लचीलापन लाता है, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, हमारा बैक स्ट्रांग होता है, रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती है, और बहुत सारे पाचन तंत्र ठीक होते हैं. सब कुछ मतलब फुल पैकेज ये एक्सरसाइज है जिसको आपको बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत है. तो सूर्य नमस्कार करने में हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है और बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत है. कभी भी बहुत जल्दबाजी में सूर्य नमस्कार नहीं करें.
बहुत ही शांति से, बहुत ही ध्यान पूर्वक सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहला चीज जो ध्यान रखना है कि आपको मैट के सेंटर में खड़ा होना है। आपको मैट के सेंटर में खड़ा होना, और सेंटर में खड़ा होने के बाद सम स्थिति में खड़ा होना। दोनों फीट आपके ऐसे ज्वाइंट होने चाहिए एंड आप सम स्थिति में खड़े होंगे। हाथ हथेली आपके यहाँ होंगे और एक लंबी गहरी सांस भर के एंड उसको छोड़ना है। देन हम सूर्य नमस्कार के लिए रेडी पोजीशन में हो जाएंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। अब हम रेडी हो गए हैं सूर्य नमस्कार के लिए। सो स्टैंड इन अ सेंटर एंड फर्स्ट आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट होगा फर्स्ट आसन के लिए, एंड ज्वाइन योर हैंड। हाथ को जोड़ना है, हथेलियों को जोड़ के नमस्कार पोज में खड़ा होना है, नमस्कार मुद्रा में, एंड अपने दोनों अंगूठों को कंठ से लगाना। और नमस्कार मुद्रा में खड़े होने के बाद बैक बैंडिंग करेंगे, हस्त उष्ट आसन, हाथ उठाकर करने वाला आसन। सो सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर हथेलियों को ले जाना है एंड डाउन। सांसों को छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे लाना है एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की ओर झुककर करने वाला आसन पादहस्त आसन। अब इसमें आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, नी आपका स्ट्रेट होना चाहिए, आपके हाथ यहाँ, आप अपने एंकल को भी पकड़ सकते हैं, आप टो को भी टच कर सकते हैं, या आप अपने फर्श पे भी हाथ को रख सकते हैं, कपाम फर्श को भी टच कर सकते हैं। जिससे जितना झुका जाए उतना ही झुकना है, बॉडी को जबरदस्ती फोर्स नहीं करना। ओके, एंड देन राइट लेग बैक, हॉर्स राइडिंग पोज, अश्व संचालन आसन, एंड लेफ्ट लेग बैक, माउंटेन पोज। माउंटेन पोज, नाभि की तरफ अपने सिर को झुकाकर देखना है। देन अष्टांग नमन आसन। इसके लिए हमें दोनों घुटनों को जमीन पे रखना है, अपने छाती को जमीन पे सटाना है और अपने चिन को भी एंड देन पैरों को, पंजों को बाहर की ओर खोलते हुए आगे की बॉडी को, अपर बॉडी को बेंड करके ऊपर भुजंग आसन में खड़े हो जाना। भुजंग आसन। नाउ माउंटेन पोज, अगेन माउंटेन पोज, देन हॉर्स राइडिंग पोज, अश्व संचालन आसन। देन दोनों पैर आगे, पादहस्त आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग। सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर जाना है, बैक बेंडिंग, हस्त उष्ट आसन, एंड देन नमस्कार। नमस्कार। इस तरह से आप इसको 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना आपसे हो सके उतना करना है। आपको स्टार्ट आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, और कभी भी बिगिनर को ज्यादा फोर्स नहीं करना है, बहुत हड़बड़ी में नहीं करना है, बहुत ध्यान से सूर्य। दो भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हमारे दोनों पाम अपने चेस्ट के पास एंड अपने अपर बॉडी पार्ट को उठाएंगे, पंजे बाहर की ओर, इनहेल करते हुए बॉडी को उठाएंगे, एक्सेल करते हुए डाउन। इसको भी हम 3 बार करेंगे, लेकिन अब हम नेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस एक्सरसाइज को कितनी बार कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चेंज हम करेंगे अनुलोम विलोम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो कि आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है कि ये सिचुएशन में
कोविड सिचुएशन में सभी को ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बोला जाता था। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में एक बात की ध्यान रखना है, आपको सुख आसन में बैठना है। सुख आसन में बैठने के बाद आपके चेस्ट ओपन होना चाहिए बिल्कुल भी। ये सिस्टम बिल्कुल हार्ट एंड लंग्स हमारा प्रॉपर वे में काम करे इस तरह से। एंड देन ज्ञान मुद्रा में हमें बैठना है। स्टार्ट विद ज्ञान मुद्रा। सुख आसन में बैठना है, जिस तरह के आसन में भी आप कंफर्टेबल हो। एंड रानी मुद्रा में इसको हम नोज पे रखेंगे। लेफ्ट नोज से हमें सांसें लेनी है एंड राइट नोज से छोड़ना है, फिर राइट से ही लेनी है एंड लेफ्ट से छोड़ना है। इस बात का, इस प्रोसेस को हम करेंगे 5 टाइम करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अनुलोम विलोम। क्लोज योर आईज, फेस पे प्रसन्नता होनी चाहिए। रिलीज। Take a deep breath. Release. Take a deep breath and release. बहुत ही आराम से करना है सांसों वाला एक्सरसाइज। सांसों के व्यायाम हमें बहुत ही ध्यान से करना होता है। आंखों को बंद रखें। नेक्स्ट वी विल डू कपालभाति। इसको भी बहुत ही आराम से करना है। आपका चेस्ट ओपन होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। आपका सिस्टम पूरे ढंग से काम करे और बैक स्ट्रेट हो, ये बहुत ही जरूरी है। जब आप इस तरह के एक्सरसाइज करते हो तो सुखासन में बैठ के ही किया जाता है। वी विल स्टार्ट कपालभाति। सांसों को जितना देर आपके पास टाइम है उतने देर का आप पूरा सेट बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चेंज करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी योगा से, जैसे भ्रामरी मीन्स मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का जैसे आवाज आती है जब उड़ते रहता तब भन वाली आवाज आती है, उसी तरह से आपको या तो ओम का उच्चारण करें या म का उच्चारण करें, लेकिन आवाज हमें उस तरह की ही निकालनी है। तो उसके लिए फर्स्ट लिटिल फिंगर ऑन योर चिन, सेकेंड फिंगर ring finger on your lips, middle finger on your nose, ring finger on your eyes, दबाना नहीं है, and thumb on your ear। और दबाना नहीं है, अपने कानों को बंद करना है अच्छे से, आंखों को दबाना नहीं है, फोर्स नहीं करना है, आराम से करना है। And take a deep breath and साउंड आराम से म वाला साउंड निकलना चाहिए। आपके पास जितना समय हो आप उतना अपने रोज के रूटीन में बना लें। एंड देन हैंड्स डाउन करने के बाद ज्वाइन योर हैंड्स, रब योर पाम। आपके हथेलियों को रगड़ें, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव हो, हथेलियों को रगड़ें। एंड जब तक आपकी हथेलियां दोनों गर्म न हो जाएं तब तक घर्षण करते रहें उनका। एंड देन टच योर आईज, अपनी आंखों को टच करें। एंड अभी आपके आंखों को नहीं खोलना है। अगेन एक बार और हम इस चीज को करेंगे। रब योर पाम,
open your eyes, wait few minutes, few seconds and touch your eyes. हथेलियों में ही आंखों को खोलना है, आपके अंदर ही आंखों को खोलना है एंड देन बाहर की ओर। अब हम सुखासन में बैठ जाएंगे। अब इसके बाद आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं या हाथ जोड़ के ओम शांति 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 करके 5 बार आप योग खत्म कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज का सेशन इतना अच्छा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्यवेतः। ॐ शान्तिः शान्तिः।